Just one podcast guest away from ruining your political career. If I ever get the opportunity to meet Ranveer, I would say I don't have any issue with him, but I do feel like he's a very big enabler. Yuvraj knew what he was doing, and that so nice. No, but actually it's a persona. It's all written out. I seriously. उसको अगर कोई ऐसे pirate करके अपना दिखा भी रहा है, people are running betting ads on my videos and are earning more than me. ठीक है, आई गेट इट, कुछ लोगों का थायराइड होता है, बट उन लोगों का एग्जांपल लेके तू अपनी ओबेसिटी क्यों, मतलब आज की डेट में इंडिपेंडेंटली रहना इज अ फकिंग स्कैम ब्रो. किस सेंस में? ये बस ईगो में आके नहीं भाई, मैं अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहता. क्यों भाई? तेरे पापा ने कभी बोला मेरे को नहीं रहना अपने बेटे के साथ? What the fuck bro? I live independently bro. Fuck है. Papa was a rolling stone. Yes. जब तू पब्लिक में बाहर जाता है, हाँ, लोग क्या बोलते हैं? कहते द ऑपोजिट इज ऑफ लव इज नॉट हेट, इट्स इंडिफरेंस. कहते आई डोंट केयर इफ दे आर डूइंग ऑल दिस. Of course there are people who do it sober, but उनके गाने बेकार होते हैं. शोज बेकार होते हैं. एलीट लोगों के लिए वेट करना पड़ता था पहले कि they'll slip and then we'll say something mean. जैसे निठारी केस. A lot of people think that I hate Anuj Jain, but I don't. No, that's why I didn't ask you to hate you. I am jealous of Anuj Jain. Hey guys, welcome to another episode of सीन क्या है. आज मेरे साथ है अर्पित बाला, जो मेरे गेस्ट जितने मैंने आज तक बुलाया ऐसा कोई भी नहीं होगा, शायद जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड भी हूँ. और ऑनेस्टली मैं थोड़ा नर्वस भी था, बिकॉज मेरे को लगा कि मैं उस बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसकी वीडियोस में लिटरली, जितनी मैं मोदी जी की वीडियोस देखता हूँ ना, उतनी मैं अर्पित बाला की भी वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ. One podcast guest away from ruining your political career. That is true. Yeah. So basically, मैंने पहला क्वेश्चन कुछ और रखा था, but I want to start off by asking you whatever happened in the last 2 days. Yeah. How have you been dealing with it, bro? Because this is all I've been thinking. Literally the mess. So I lost my grandfather. Yeah. 1-2 दिन पहले. I would say not even 1-2 दिन पहले, कल ही हुआ है. And it was kind of weird because to be very honest, I deal with it to be very honest by just blocking it out for as I'm working I try to block it out. Yeah. But I did have a small breakdown in front of my parents. I did cry. Yeah. It's not like I wouldn't. No, that is. Yeah. It's always good to cry, bro. Yeah. Of course. I don't know, man. There were layers to it, but yeah, I'm back on the grind, I guess. Yeah. Very quickly, bro. That is actually amazing that you are, taking it in the right way. But you eventually will deal with things in life as they come and go. So, Anji, Arpit Bala. Yeah. अभी मैं सारी वीडियोस देख रहा था before you came here with विकास भाई, who is shooting us today. और हम एक वीडियो स्पेसिफिकली देख रहे थे. हाँ जी. और वो थी रणवीर इलाहाबादिया वाली. और वो मैं शायद खुद 20-25 बार देख चुका हूँ. अपनी पैंट नीचे करके बैठ जाएगा. What is your take on Ranveer Ala? Would you ever go on his podcast? I think actually, I think if I ever get the opportunity to meet Ranveer, I would say I don't have any issue with him, but I do feel like he's a very big enabler. हाँ, ठीक है. हाँ. उसके सामने कोई भी बंदा है ना, तो he will enable their idea. हाँ. And उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कर दिया ना, अब मैं अपने आप को भी स्लिप इन करता हूँ उनके सामने कि हाँ आप भी खराब हो, मैं भी खराब. हाँ. वो पहले उनसे शुरुआत करवाता है और फिर घुसता है उसमें. Yeah. So that अगर आप रणवीर इलाहाबादिया के साथ में किसी फ्लैट अर्थर को रख दोगे ना, वो बिलीव करवा, वो सही कह रहा है भाई, तू कह रहे हो. और है फ्लैट. I get it I get it अभी उसकी एक वीडियो देखी थी, कोई तांत्रिक आया हुआ था, मतलब जो भूत प्रेत के बारे में बात करते हैं.
और लिटरली आई डोंट नो लोगों ने नोटिस करा या नहीं करा. Yeah. So he was talking, the guest was talking about some evil energy and you know how they can break things and they can be inside things. Yeah. और एकदम से ही उस बंदे ने रील काट दिया और पता नहीं उसके कितने लाइक्स है. एकदम से ना वो कह रहे ओह शिट. Yeah. और उसने क्रॉस पहना हुआ है और वो उसके चेन से टूट गया. हाँ. अब कितना फिक्स्ड, कितना मैच फिक्सिंग. Yeah. ये लिटरली वही है कि तूने उसी टाइम पे उसको करा और भाई अब लोग कह रहे वाओ यार भाई. Yeah. हर चीज के I think Ranveer Alavadia is like I would say the best grifter in YouTube. On Indian YouTube, the best grifter, I would say. Best one. Like, you have to respect his hustle. बट तू जाएगा नहीं भाई अगर वो पॉडकास्ट पे बुलाएगा. I think so. Like, you know, that conversation would be wild because I would have more. You enable him. Yeah, You go. it would be probably more about like, you know, you remember that conversation you had with Yuvraj Singh? You remember that conversation you had with this guy? Yeah, what was that? 2.5 घंटा में युवराज सिंह. आप क्या खाते थे बचपन में? हाँ, अच्छा. कड़ी चावल, राजमा चावल, ये मैं जानता था. He could have asked so many things, but like, खाना अच्छा है, रोल अच्छा लग रहा है. और वो बंदा इतना बोर्ड लग रहा था. Yuvraj knew what he was doing, like, and that so nice, like, you know. And you know when Ranveer asked him on the podcast कि what do you think the first time we met? Yeah. तो युवराज सिंह हंस पड़ा. Yeah. तो रणवीर ने कहा कि जो मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में वही वर्ड आ रहा है ना, और वो वर्ड क्या था. Come on, man. But I love watching his podcast. Not the recent one, but yeah, I generally do like watching his podcast. यार ये वही बंदा है जो मतलब आज से 6-7 साल पहले ऐसे दिखा रहा था एक थैली जिसके अंदर उसके किडनी स्टोन्स भरे हुए थे. तो I don't have any like, you know, मतलब I don't have any bad blood. Like, हाँ, this is expected from this guy. This is my bag of kidney stones, guys. Bro, have you always been funny as a kid? Like, बचपन से ही तू ऐसा है? नहीं, I was annoying. I've always been annoying. That annoying kid who's too obnoxious, too loud. Okay. In the back of the class and everything. But slowly I had to like, because पहले like all the like typical funny guys that you see around yourself, है ना, जिनको लगता है कि they're funny or like you think conventionally are funny, they always have it like कि हाँ bro, I'm just funny because I'm naturally funny. Funny, yeah. But the difference is when you have to like make funny content, it's a different ball game. Yeah, you know, you cannot. It's very difficult to make funny content. So there is another craft to it. I would say there is another. But you know, sorry to interrupt you, but जब हम तेरी streams देखते हैं या जो बाद में streams के बाद जो videos आती है YouTube पे वो देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता, you know, ऐसा लगता है कि this is you. Yeah. No, but actually it's a persona. It's all written out. Like, you know, I Seriously? Yeah, I wrote. No, but like when you're reading out questions and answering back to those guys on live, it's so natural. Like it. So what happens is ki, like the thing that I do is like I write my like shit down and like I have to like manipulate it to answer the question of manipulate my answer like whatever I've written down. Acha, okay. So that it also answers the question and I also get to like do my bit. Acha, so that's how it happens. But you are doing it pretty perfectly because I don't so, because हमें देख के ऐसा नहीं लगता, हमने तो यही इमेज बनाई. बट जब मैं तेरे दूसरे तरीके के पॉडकास्ट देखता हूँ, जैसे मैंने प्रखर वाला थोड़ा बहुत देखा था, उसमें कमेंट सेक्शन भी पढ़ रहा था एंड एवरीवन वाज जस्ट लाइक कि wow, that side of Arpit Bala, like I find that corny to be very honest because it shifts away like, you know, the conversation from what I do, that is like make funny content, and I don't want that. You don't want to be serious at all. I feel like once you start doing that, it shifts the light away from what you're here to do, right? So like एक point के बाद like तो मतलब मेरे लिए पॉडकास्ट करना बहुत गलत चीज नहीं you can still be funny, we can still be honest. Exactly, yeah. But I get what you're saying. Yeah. हाँ, तो like I do care about my listeners. Yeah. Like I don't want them to be like अच्छा ठीक है अब जोक तो मार दे भाई. अब तो ठीक है भाई, समझ गया नियो लिबरलिज्म, समझ को प्लीज अब जोक मार दे अब प्लीज भाई. You're like a well-read Veer Das, please. Do you like Veer Das? I used to. And why do you say that? As a kid, as a comedian, like as a comedian when I was a kid, I really looked up to him when he was in Go Goa Gone and everything. Yeah. But एक point के बाद ना that whole
theme in USA back in 2016-15, there was this whole group of comedians that came. Donald Trump bad, hasso. Trump bad, hasso. सही बात है, सही बात है. That's also I think cashed in on those कैसे बोलूँ वो जो those elements. नहीं वो जो होता नहीं कि मतलब easy targets. हाँ. है ना, एक वो होता है लो like you say he went hanging fruits. He also went like political with it, like how not political. I would say कि even if you do, I'm not against political comedy. Yeah. No, it's needed. I feel in India it's needed. It is needed, more, yeah. but जो उसके अंदर एक वो चाहिए होता है ना, क्या बोलते हैं political comedy करने के लिए ना, मतलब pushy नहीं लगना चाहिए. You're saying not pushy. There is कैसे समझाओ, एक अलग level का you need to have like a very deep understanding of politics. हाँ. When you need to understand that subject more. हाँ, इतना ज़्यादा black and white करके if you try to make jokes. Yeah, but because there is a gray area. Gray area की भी बात नहीं है, एक I'm forgetting the word. हाँ. But like yeah, political comedy. मैंने एक बारी उसको बोल दिया था कि क्या फ़र्क पड़ता है जो politics के ऊपर जोक करके, ये वो मेरे को तो corny लगता है and everything. I don't say कि मतलब politics के ऊपर जोक नहीं करना चाहिए. I feel like politics के ऊपर jokes कर सकते हो तुम. It's not like, but उसके जो minute details होते हैं and everything, to understand that and then try to like come up with something. Yeah. That is something like needed. Not कि ऐसे ही मतलब. Do you like Bill Burr? Bill Burr, हाँ, like I used to listen to a lot of portrays, Bill Burr और पुराने वो जो मतलब Black Phillip show आया था portrays का and everything. तो बचपन से you have been consuming a lot of comedy. बचपन से तो मेरा ऐसा होता था कि like back in school मेरे पापा के पास ना बहुत सारी ऐसी होती थी बुक्स, वर्ल्ड्स बेस्ट जोक्स. अच्छा है ना, और लाइक बेस्ट एडल्ट जोक्स, जोक्स टू क्रैक इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, ऐसी बुकलेट्स होती थी पापा के साथ, पापा के पास, और वो ना अपने वॉशरूम में रखते थे. So I had this habit of stealing those books and just like go to school and like लोगों को सुनाना वो सारे. And not even like बकचोदी. Not even like कि मेरे क्लास के बच्चों को, because half of the time वो मतलब इंग्लिश वाले जोक्स होते थे तो उनको समझ में भी नहीं आता था, कि उनको लगता था हाँ ब्लॉन्ड है तो क्या हो गया भाई. कौन से स्कूल से है तू? I was फरीदाबाद में एक अच्छा स्कूल है, I don't want to take names. अच्छा ठीक है. Yeah. You and Carrie Minati were in the same school. Yeah, Okay. yeah. Now you fuck it. Yeah. Yes. But yeah, that's how it started. Like I enjoyed that whole theme of like attention and everything, because मैं वो जोक सुनाता था. I really like कि मतलब मैं बस के पीछे भी अगर बैठा हूँ तो सीनियर्स और वो सारे बच्चे जो समझ पाते थे मैं क्या कह रहा हूँ 12th और 11th के भैया मेरे जोक सुनते थे और they would be like what the fuck, ha. तो वो मेरे को अच्छा लगता था, and that's how it started. So it just like one thing led to another, and I was just like watching a lot of stand-up since 2016 बहुत ज़्यादा. उससे पहले भी मैं देखता रहता था. And you've done law also. Yeah. Abhi, yeah, you're like, you've completed it, you? Yeah, but I haven't given the bar exam. I think I'm too scared. Asa. I'm too scared to give it. Do you plan on giving it now, or you like, even if you don't, you don't? नहीं, I think like bar exam इतना hard नहीं होता देना. बस 6 महीना मतलब नहीं 2 महीना पढ़ूंगा, उसके बाद जाके दे ही दूंगा, इतना कुछ वो नहीं है. बट पेनल्टी देनी होगी क्योंकि 2 साल का गैप, उसके बाद पेनल्टी लगती है. अच्छा. Yeah. So you were doing law, content creation, and you were rapping as well. You are rapping as well. Yeah. Like apart from law, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मतलब दोनों के क्या ups है, क्या downs है? Which is something that you see कि यार मैं दोनों करूँगा या मेरे को यही करना है. I to be very honest, I do things because I can. Like nobody's stopping. That's stopping me. Exactly. That's why I'm doing it. Like until and unless they just like start a fucking whole agenda, deplatform Arpit Bala, I don't think I'll stop. No, but like कुछ तो लगता होगा ना कि यार you like doing content creation more, you like rapping more. I think it's more about like कि मतलब अगर मैं music भी कर रहा हूँ तो there is always this intersection between comedy and like whatever I'm writing and everything, and it shows. तो as such कुछ difference नहीं है मेरे music और comedy में. Like, I feel creatively satisfied when I'm doing both the things. तो but like deeper meaning in सबके पीछे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है. Creative fulfillment. You like doing it, you're doing it. You've always been a very creative, talented guy. Creative fulfillment है, but the thing is कि मतलब आप एक जोक
एक जोक को आप 6 महीने नहीं चला सकते है ना, बट लाइक एक गाने को आप 6 शोज बजा सकते 1 साल तक बजा सकते हो अच्छे तरीके और से, तो कितने सालों सालों तक चला सकते हैं लोग उसको उसके बाद. Do you think like about doing content creation? How long have you been doing it since 2015? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड ढंग से करना फ्रॉम 2018. उससे पहले क्या था? उससे पहले आई वाज जस्ट लाइक watching a lot of stand up, watching a lot of like, बट कर नहीं रहे थे. I wasn't uploading anything, but वही होता है ना, Snapchat पे स्टोरी डाल दी funny सी, and like all my friends are like, yo what the fuck, that's funny. Did you like was there a moment in your life where you realized कि oh fuck भाई अब मेरे को बहुत लोग जानने लग गए हैं? ऐसा कुछ था? There was never this moment कि मतलब कि भैंचो लोग जानने लगे इसलिए कॉमेडी करने लग जाता मेरा ऐसा कुछ. It was like कि I just kept on doing it and slowly एक audience बनती रह गई. So, but it's only recently that I realized, yo what the fuck, मतलब. Is it because your memes have started going like your faces? Yeah. भाई इतने राइट विंग वीडियोस अर्पित बाला के शक्ल. I would say that on the record I am politically ignorant and politically silent. हाँ. नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बकचोदी लोग करते हैं. Yeah. You have no control over that. I don't have any control over it. Like I've seen यूथ कांग्रेस के पेज ने भी मेरी वीडियोस को यूज किया एंड एवरीथिंग, एंड I don't feel like भाई एनसीआर में तो ऐसे यूथ कनेक्टेड है ना अर्पित बाला से. मेरे को मतलब कॉपीराइट के लिए ज्यादा गुस्सा आता है rather than कि आप लोग मेरे को पोलिटिसाइज कर रहे हो. करते हो मतलब लाइक हैव यू डन ऑल दिस कॉपीराइट शिट कि भाई यू सेंड आउट ऑल दिस? आई डोंट केयर. लाइक जिस चीज के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी है उसको अगर कोई ऐसे पायरेट करके अपना दिखा भी रहा है, लाइक पीपल आर रनिंग बेटिंग एड्स ऑन माय वीडियोस एंड आर अर्निंग मोर देन मी. I just think that's a hustle, bro. That's just hustle. That's true. These betting ads are everywhere, man. I'm single-handedly supporting the backbone of Indian betting. Yeah. And yeah, that's true. Are you dating? Yeah, I am. Sort of. Sort of मतलब situationship. No. आजकल कितनी situationships होने लग गई है. Not situationship. It's, I don't know, man. I wouldn't even call it dating. We're just talking. We're just talking. When was the last time you were in a... Have you been in a proper relationship? I think it was last December. पिछले साल. Yeah. अच्छा मतलब उससे पहले Yeah. proper चल रहा था. You're 24 right now. Do you think कि भाई मैं while I'm doing all this so many things at once कि मेरे को डेट करना है या मेरे को बस रहना है जैसा मैं हूँ, या you know because बहुत सारी चीज़ें आ रही है उसके साथ. I mean like a lot of women do leave me because I'm just stupid. Like you know when it comes to like Bakchod making content, like you know I अच्छा because of that? Yeah. Seriously? Yeah. But don't, when they talk to you, no. But when they talk to you like one-on-one properly, तब तो they would know ना. Bhai, this is not his. Yeah. It's funny when they talk to me one-on-one, but it's like infuriating when they see the same shit that completely opposite. कि मैं स्क्रीन पे उसी के बारे में बता रहा हूँ और उसका मजाक उड़ा रहा हूँ. Yeah, women do have their reservations, and it's something that I'm working on. Yeah. To be serious about it. Yeah. I'm trying. Your takes on like what do you think about fat shaming? Okay, I'll ask you. Do you think this is a political question again? No, fine. I feel like I was fat. Okay, so I was fat. Yeah, मेरे एक podcast पे देखा till my dad told me. Yeah, I was fat, and then my dad told me that I was fat. Yeah. And then I had to like work my ass off. Same. So I was just like, bro, it's chill, bro. Why are you so thin-skinned? ठीक है, I get it. Like कुछ लोगों का थायराइड होता है, but उन लोगों का एग्जाम्पल लेके तू अपनी ओबेसिटी क्यों मतलब कि जब तू वीडियोस बना रहा है, बिकॉज मेरे को ये पूछना था. Yeah. बिकॉज मैं अभी तक अपने मॉम डैड के सामने गाली नहीं दे पाया पॉडकास्ट पे. Yeah. रियल लाइफ में भी नहीं, मतलब मैं नहीं दे पाता. Okay. तो Yeah. उन्होंने डिस्कवर करा था या तूने दिखाया था? So I always kept it like a secret. नहीं बताना घर वालों को, because I don't know, man. These people are very like academically oriented. Okay. So like you cannot expect them to like understand and like appreciate what like what is degenerate content. So कि बकचोदी ऐसी क्या होती yeah. है? So I was like, cool, bro. कोई दिक्कत नहीं है. I kept it a secret, and once the like ball started rolling, I was just like, this is what I do. I'm cool with it. And sometimes you know what?
शुरू में parents had like a reservation about it, like तुम गालियाँ दे रहे हो इन्हें. But nowadays, like, you know, I'm so ashamed of it, like, you know. So what I did was like I'm ashamed of the fact that I did the Nigerian accent. In retrospective, I do think that it is somewhat like, you know, racist. ठीक है. But now what happens is कि मेरे पापा कहीं पर भी जाते हैं. कोई अपने मतलब फैमिली गैदरिंग में वो मतलब वीडियो दिखाता हूँ अपने बेटे की, and it's just me doing the Nigerian accent. ये मेरा बेटा है, bunch of dudes are it's just me doing the Nigerian accent. And so yeah, I'm happy. Like my I think my dad has a sense of humor. That's where the joke books. Yeah, that's where he got it wrong. Yeah, my dad has a sense of humor. My mom, nah. She doesn't. It's always like chi, haw. Even now. Yeah, chi, haw. But bro, like, yeah. 24 साल की एज में, like, I saw one of your streams, or maybe it was on the podcast where you were talking about living independently on your own with your own money. Yeah. How much independence does that give you? मतलब तुझे क्या लगता है कि कि कुछ भी कर सकता हूँ मैं अब? नहीं. I do think living on your own terms is a very good thing. But to be very honest, आज की डेट में independently रहना is a fucking scam, bro. It's a scam. किस सेंस में? तो you're 21, 22. You don't have the grades or like, you know, इतनी सिफारिश नहीं लगा सकते तुम्हारे घर वाले कि तुम्हारे को एक अच्छी well paying job मिले. The most you can do is 50-60K per month. ठीक है, the most है ना, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है 50-60K per month. And you try to live independently, you're saving around 10 to 20K, है ना, and living paycheck to paycheck. इससे बढ़िया क्या है bro? Just fucking say कि हाँ मम्मी पापा मैं आप लोगों के साथ में रह रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं आप लोगों के साथ रह रहा हूँ, I'm saving rent money. भाई एक बात बताओ, मैं भी इस बात से एग्री कर. हाँ bro, मैं भी एग्री करूँगा. बाहर इतना ज्यादा फकौल है ना कि 18 के बाद वो तुम्हारे घर से निकल. बट ये इंडिया के बाहर तो सीन ही यही है ना, वो बाहर वही है ना. तो बट लाइक I fuck with India so much because of this. Like same 30s तक बच्चा अपने घर में रह सकता है भाई. एंड 30s तक नहीं भाई, सारी जिंदगी बच्चा अपने घर में रह सकता है, फिर उसके भी बच्चे रह सकते हैं. आई थिंक जब तक 20-25 लोग घर में नहीं हो जाते तब तक लोग छोड़ के नहीं जाते. 30-32 में अगर आपका बेटा सिर्फ रह रहा है घर पे, अच्छा हाँ कि वो कुछ भी नहीं कर रहा. So I will always say कि the whole mirage of living independently, being financially independent, it's a rabbit hole where you overwork yourself with the time, with time. And ये मैंने बहुत देखा है भाई आजकल. ट्विटर पे ये स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम पे गुस्सा और यूट्यूब पे फटा. क्या सब कुछ यूट्यूब पे आके फटता है ऐसा? आई थिंक सो, लाइक यू नो, क्योंकि पीपल गेट इंटरेक्शन एंड बेट फ्रॉम ट्विटर एंड देन दे ट्राई टू शिफ्ट टू इंस्टाग्राम जहाँ पे वो रील्स बनाते हैं, एंड फिर यूट्यूब पे जाके लॉन्ग प्रोफाइल में जाके जिनको डिटेल में जाना होता है ढंग से तुम्हारे दिमाग में घुसते हैं. तो उसके चक्कर में मेरे को तो दिख गया था भाई कि मतलब इट्स जस्ट अ स्कैम इन विच पीपल जस्ट फोर्स यू टू लाइक यू नो नॉट एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंसेस of which I'm part of, like, you know, it sounds good. 25 में you're living in a flat, you have a car, but ये तो भाई ऐसा साउंड कर रहा है MLM वाला है. In reality you're just paying EMI. हाफ मतलब पूरी सब कुछ तो EMI में जा रहा है, पूरी सैलरी तेरी बस EMI पे जा रही है. एंड इट्स व्हाट इज दिस भाई, ये किस लिए है? लाइक यू आर नाउ लिविंग इन क्रेडिट एंड यू आर ग्लोरीफाइंग इट. जैसे यूएस में होगा ना, हाँ स्टूडेंट लोन बढ़ चुके हैं, बट दैट्स हाउ इट इज. लर्न टू लिव विद लिव, यू नो. उधार वो चुकाते रहते हैं. उधार पे जीना इज नॉट अ बैड थिंग गाइस, कम ऑन. दैट्स हाउ दे गेट टू यू, दैट्स हाउ दे गेट टू यू. So I will always say कि भाई इतनी ज़रूरत नहीं है कि भाई even if you're like earning a lot, staying with your family and like you know just for a few years till you get like be comfortable, be a little more comfortable, more comfortable. Yeah, that's true. Build a decent backbone and everything, and फिर छोड़ो. 100% भाई सही कह रहा है, तू सही कह रहा है. Sense भाई, it makes sense. ये बस ईगो में आके नहीं भाई, मैं अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहता. क्यों भाई? तेरे पापा ने कभी बोला मेरे को नहीं रहना अपने बेटे के साथ? What the fuck, bro? I want to live independently, bro. Fuck ahead. Papa was a Rolling Stone, yes. And he still actually सही बात. And he still is best. So I genuinely feel कि
आपको अगर इंडिपेंडेंटली रहना है, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव ढंग से जिस लेवल का कंफर्ट आपको मिल रहा है, मतलब उस एज में खुश रहो थोड़ा, अगर इफ यू हैव द प्रिविलेज टू, तो थोड़ा आराम से रहो। जब तू पब्लिक में बाहर जाता है, हाँ, लोग क्या बोलते, तो आई नो हम पे तो आई नो अर्पित भाई, हम पे तो है। आई एम नॉट मैड अबाउट इट, लाइक यू नो इफ दिस इज व्हाट भाई ये कहाँ से आता है? मतलब मैं ऑनेस्टली तेरे साथ कॉन्वर्सेशन करके ना, मैं वो ही नहीं कर पा रहा कि भाई ये बंदा कहाँ से लेके आता है इस चीज को। देखो हम पे तो ये जो हम पे तो है ही नो है, ये मैंने जिन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बनाया था, उन्हीं लोगों ने इसको वायरल करा है, उन्हीं लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक ये हाँ हम ऐसे ही हैं भाई, और हम भी बोलते हैं लाइक, एंड जैसे I've said it, like, you know, But comedy, how the white people use the N-word against black people, and then black people took the N-word and they used it as a term of endearment. वैसे ही मैंने देख रहा हूँ कि मैंने हम पे तो you know इन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बनाया था, है ना, एंड उन लोगों ने बोला ये हमारी तरह बात कर रहे हैं। dog gave me it. I was thinking about it, but I couldn't put it in Touch the masses' hearts. Yeah, I couldn't put it in words, but he did. Like, हाँ, एक तरीके से, but I'm not mad at these people जो भी मेरे पास आके मेरे को ऐसे कुछ बोल देते हैं and everything. I don't think कि उसमें कुछ खराब। That's the persona you've yeah, मतलब you get what you fucking like give. So I don't have any control over that, and I'm quite happy with it. Like इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तूने अपने आसपास का सारा वही ऐसे बना लिया है कि लोग, हाँ, मतलब इशू तब आता है कि वन लाइक इफ आई एम इन पब्लिक विद माई पेरेंट्स, तब कोई आगे बोल दे डिनर टेबल, ऐसा हुआ है एक्चुअली। आई एम जस्ट फकिंग एंग्शियस कि मेरे पापा कहें अर्पित भाई चूत चाहिए, एंड मेरे पापा को लग रहा है कि मैं ये ऐसे कैसे व्हाट द फक, घर में पैसे कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, बोल गया। Imagine your mom. yeah my man. Yeah, तो थोड़ा एंजाइटी तब होता, but ऐसा, but I think it's a taboo, like, you know, like Do you enjoy this? I wouldn't say enjoy it. It's just like, yeah, this is like part of your job and part of who I am. This is my persona, है ना, कि मतलब अगर कैसे समझाऊँ? No, not just people coming up and saying this, but people coming up to you. I mean, I don't enjoy it. I like to stay alone, to be very honest. You seem like a very shy person when I saw you for the first time. Yeah, I tend to keep, like, you know, कि मतलब मेरे को ज़्यादा भीड़ भाड़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं बस चुप शांत रहना पसंद है मेरे को ज़्यादा। मैं यहाँ भी देख सकता हूँ भाई, like you can flip, like you can do this very easy. Yeah, because I don't know, this is a persona that I work on, and now I don't know how to explain it. Would you get into acting? नहीं, nah, fuck that. बिल्कुल भी नहीं। That no, not Bollywood. भाई कोई कॉमेडी मूवी तो कर ही सकता है यार। राजपाल यादव, you want me to be? तो उसको वो बहचोद उसको क्या पूछा था उसने? क्या? कि आपको शर्म नहीं आती है ये देख के? उसने रणवीर ने अपने पॉडकास्ट में क्या बोला था? वो राजपाल यादव के साथ उसने पॉडकास्ट करा, तो राजपाल यादव की पुरानी वीडियोस दिखा रहा था उसको। हाँ। और उसको कह रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपको बोलते नहीं कि वो शर्म नहीं आती आपको कि आप ये सब करते हो अपनी मूवीज में? What the fuck, bro? राजपाल यादव कहता है नहीं। Finest actor. Exactly. भाई मैं सही बता, तूने ये नहीं देखा ये वाली क्लिप? लोग राजपाल यादव को कॉमेडियन की तरह देखते हैं, but he's one of the फाइनेस्ट एक्टर्स। उसने क्या क्या करा है भाई, क्या रोल्स करे हैं? I don't think इतना बढ़िया रिटार्ड आदमी और कोई प्ले कर सकता है। वास्तुशास्त्र देख, वास्तुशास्त्र में जो राजपाल यादव है ना, भाई वो हर मूवी में I think he's, और भी उसको कह रहे हैं कि आपको शर्म आती है। What the fuck, bro? Can't believe it. आपको आती है रणवीर? नहीं आती आपको रणवीर में तो शर्म ही नहीं आती। ग्रिफ्टिंग so hard. इतना कौन ग्रिफ्ट करता है? अभी उसने ये भी करा था अपनी वीडियो, एक रणवीर ने अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट करा और अपनी सारी मीम्स देखी। और कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, द ऑपोजिट ऑफ हेट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट्स वाओ, यू डू अ वेरी गुड इम्प्रेशन। भाई उसने क्या बोला था, इट्स क्या वर्ड होता है यार, indifference. कहता था opposite is of love is not hate, it's indifference. तो कहता है I don't care if they are doing all this. ऐसे sure bro, I'm telling you, he cares, everyone cares, and any creator who says na he doesn't care,
he gets cancelled. ठीक है, बहुत बुरी तरीके से. विवेक बिंद्रा. आई डोंट थिंक कि पता नहीं उस वाले केस में ये तो कुछ और ही चीज़ें हो रही है. मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा. आई फील बट आई डोंट नो अबाउट विवेक. हाँ छोड़ दो. हाँ. But I feel like you do need to care what people think. You do need to care what people think. You do need to care about who you are also as a person. Yeah. And you have to find a balance. ऐसे थोड़ी होता है कि मैं नहीं भाई ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. अबे तो चूतिया है क्या, तू पागल है, क्या कर रहा है? Of course Of course he cares. Of course he cares. And I've seen it. Like, you know, he's working on it slowly and slowly. Yeah. कि एक दिन आएगा and जब I'll crack it. Yeah. But that's good. I think like he has grown a lot. Why not acting? Why not acting? I don't find it creatively fulfilling enough. Acting. Yeah. कोई अच्छी सी हॉट एक्ट्रेस हो? नहीं bro. मतलब मजाक कर रहे हो. भाई तुझे कोई बोले देखो आलिया भट्ट के साथ मूवी करनी है, नहीं करेगा? Still wouldn't care. Still wouldn't care bro. Acting is just like नहीं करना मुझे. Because thing is कि एक तो भाई like Bollywood, even like Hollywood, ये लोग नहीं समझ सकते हम लोगों के क्राफ्ट को. मैं नहीं समझना चाहता उनके क्राफ्ट को. Simple as that. They rely on very weird things to like, you know, cast you and everything, and that's just. But इस क्राफ्ट से मूवी नहीं बन सकती. What you are doing, मतलब, you know what I'm saying, bro? But I would rather do it on my own than like, you know. अच्छा, okay. Depend on like an step. What about stand-up comedy? Have you done stand-up comedy? That's a different ball game. I've tried once or twice. एक बारी ऐसे open mic. हाँ, एक बारी अच्छा हुआ था. दिल्ली. हाँ, और एक बारी I bombed. So वो कैसी feeling होती है? क्या bombing? Yeah, it's just like it's every other day for me. It's like yeah, मतलब you feel like killing yourself for a week. Every other day for me, मतलब on the stream also like. Yeah, of course you bomb. Of course you like, you know, तुम्हारा joke नहीं फटता and people are very quick to point it out कि ये बेकार joke था, boo, and spamming L's in the chat. But and that's how it is. Tour stories बता भाई कोई. Tours? कहाँ पे tour? To be very honest with you, मैं एकदम सच बताऊँगा. I've heard one or two of your songs. Wu-Shang Clan and one more. महारानी होगा वो. महारानी, हाँ. They were very good, but honestly I've like not heard a lot of your music. Yeah. But I have like I really appreciate like Desi hip hop and I love and like my favorite artists are सीधे मौत. I don't know. मेरे तो वो favorite है भाई. मेरे एब 17 के साथ भी पॉडकास्ट करा था. बावे मैं दिल्ली से. हाँ. क्या अलग ही वो जुआ होता भाई पूरे टाइम मेरे सामने. एब 17 एक ऐसा बंदा है कि he's exactly what he is in songs. So that exactly, yes. Yeah, so I've ऐसा लगा कि वो बंदा ही बैठा है जो गा रहा था उस टाइम. You need to give him that respect. Like if you're pissed off कि मतलब मैं एब 17 से मिला और वो ऐसा ही है. भाई तूने गाने नहीं सुने उसके? Literally. But how is it touring? The touring was nice. I feel I would say it's hectic for me now because management and everything सब कुछ खुद देखना पड़ता है. But it's also very rewarding when like you know the show goes well. So like you manage your own tours. हाँ मतलब एक kind of. It's very मतलब like a close team. मतलब ऐसा the other people in your like as you get more Fusi gang. As you get more bigger, you get more and more divorced from the management side of things. हाँ. है ना? Of course. फिर एक sense of alienation आ जाता है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं and everything. वो नहीं है अभी. तो उसमें आई एम स्टिल इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस एंड आई डू एंजॉय दैट. आर्टिस्ट इतने ज़्यादा वो क्यों जाते हैं? क्या? जितने मतलब वो इन द सेंस कि हम जितने भी आर्टिस्ट को देखते हैं बहुत मेजॉरिटी लाइक दे गेट इनटू अ लॉट ऑफ ड्रग्स. मतलब बहुत सारी चीज़ों में घुस जाते हैं लाइक स्पेशली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? और सब लोग कहते हैं कि व्हाइल दे आर टूरिंग उस टाइम वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स कर रहे होते हैं. बिकॉज भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप उनके टूरिंग के डेट्स देखो इट्स जस्ट लाइक एक दिन, उसके बाद एक दिन का गैप, दूसरे दिन दूसरे शहर में जाना, फिर एक दिन का गैप, फिर तीसरे शहर में जाना है, या फिर लगातार. एंड दैट इज गोइंग ऑन फॉर लाइक 2-3 months. तो भाई ऑफ कोर्स आदमी बहनचोद कोकेन करेगा भाई. हर रोज उसको करना है. ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बी ऑन मॉली. ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू डू एम्फेटामीन्स. दैट इज व्हाई वो एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मॉटली क्रू. दैट इज हाउ दे फंक्शन. दैट इज हाउ, बिकॉज काम ऐसा होता है यू कैन नॉट डू इट सोबर.
इतना प्रेशर एंड एवरीथिंग, यू नीड टू बी ड्रग्ड आउट ऑफ योर सेंसेस टू डू दैट. एंड इट्स नॉट लाइक कि क्रिएटिवली आपको वो चीज़ चाहिए, क्रिएटिव का नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि टूरिंग करते हुए एंड एवरीथिंग इतना ज़्यादा वो घिसता है ना आदमी, तो उसको चाहिए होता है क्रच. नहीं कर सकता वो उसके बिना, नहीं तो इट्स वेरी हार्ड. आई वुडंट से कि इट्स इम्पॉसिबल. ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु डू इट सोबर, बट उनके गाने बेकार होते हैं. शोज बेकार होते हैं. मैंने वो देखा था जैसे नहीं ऐसा कुछ वाइल्ड नहीं हुआ है टूर करते हुए. वही आई वुडंट कॉल देम ग्रुपीज, लाइक यू नो, और लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना रोड फक्स. आई वुडंट address them like that, but there are some women out there who think just because they know you, they are owed a good time even after the show. Okay. And I'm just like, नहीं मुझे सोना है. They're just like, But where's the after party? what after party? कहाँ पे था? ये this was like everywhere that we go, where's the after party? And we're like, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त या तो रिलेशनशिप में एंड एवरीथिंग, और मैं आई एम जस्ट लाइक नो, आई एम टायर्ड. तो नहीं होती आफ्टर पार्टी. नहीं, मेरा मन नहीं करता इतना ज़्यादा करने का. बट हाँ, अगर हो ही जाती है कभी कभी. अगर इफ इट्स लाइक अ स्मॉल सर्कल जहाँ पे आई कैन, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि मतलब आफ्टर पार्टी करते हुए ना उन लोगों को लगता है नाउ आई एम लाइक इन ग्रुप, इन दिस ग्रुप आई कैन चिल विद देम व्हेनेवर दे वांट. फिर वो एकदम से रैंडमली कैमरे निकल जाते हैं, फोटोज निकल जाती हैं, एंड देन देयर आर लाइक यू नो, आई सॉ Arpit Bala doing cocaine. Yet to happen. Okay. Because I don't do that. That's good. Yeah. So I would. तूने ये बोलने के बाद ऐसे नहीं करा. नहीं, I'm just saying. नहीं, I'm completely sober. यार, I only do cigarettes and coffee. That's all. I'm being 100% right now. Yeah. It's 100%. The problem is कि even if you drink in front of like random people, I will advise this to anyone. Like if you're like popular, don't do that in front of like random people who have seen you as like you know sober. Yeah, I 100%. है ना, there should be like एक छोटा सा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आप let वही वाला जो enjoy let lose कर सकते हो, enjoy कर सकते हो. I actually completely agree to that because alcohol से आप किस तरीके से कैसे रिएक्ट करोगे आपको कभी भी नहीं पता. स्पेशली लोग जिनकी थोड़ी loud या impulsive personalities होती है, it can go a really wrong way. And I am very like I would say anti like narcotics because I feel I have like you know family members who have become psychotic because of marijuana and everything. So seriously, psychotic because of marijuana. Yeah. आप लोगों को क्या लगता है marijuana से कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते? You still think that it only cures cancer? नहीं. ऐसा तो बिल्कुल नहीं. Of course, you are inhaling something होता है in your body. आप लोगों को ना शायद से इतना ज्यादा पता भी नहीं चलता होगा क्योंकि आधे से ज्यादा जो लोग होते हैं जिनको ये पता होता आप लोग, मैं तो फूकता ही नहीं हूँ. नहीं, नॉर्मल लोगों को मजाक. आई एम टॉकिंग द व्यूअर. बहुत सारे लोगों को नहीं पता नहीं होता कि इससे साइकोसिस कितना ज्यादा बढ़ जाता है marijuana से, बिकॉज जो लोग ये देखते हैं ना कि साइकोटिक हो रहे हैं लोग, वो लोग इतने बिजी होते हैं कि दे आर नॉट फ्री इनफ टू फकिंग ट्वीट इट आउट और लाइक बी ऑन इंस्टाग्राम. क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा चूतिया नहीं होता बैठ के टुडेस फकिंग पेशेंट, आई कुड सी इट इन देयर आईज, और एनी थेरेपिस्ट फॉर दैट. दैट्स ट्रू. वो नहीं बताते, बट आप किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के साथ में बैठो तो वो बताएंगे आपको ये होता है कि साइकोटिक ड्रग है, इससे आदमी भ्रम जो वो पालता है ना वो कॉन्क्रीट हो जाते हैं. तो हो सकता है ना. तो आई ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. आई ऑलवेज स्टे अवे बिकॉज आई losing that sense of control is something that I despise or becoming paranoid. That's true. मैं अभी पता है रिसेंटली एक दिल्ली के स्लम गया था. मैं सही बताऊँ ना, एलीट लोगों के लिए वेट करना पड़ता था पहले कि they'll slip and then we'll say something mean. जैसे निठारी केस. Elite, that case was less. क्या example दिया है? Case was less about the crime that happened and about the person that had done it. More about the class differences in that area. Yeah, that was a businessman, and these were the targets of that crime were basically people from the marginalized groups. So for them it was like, अब तो बैन चोरू हैं. साले पैसा चमकाता था ना तू. देख ये होता है भाई वहाँ पे. अब बट आज की डेट में लाइक यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक क्लासिज्म एंड एवरीथिंग दैट कि किसी को गाली देने के लिए यू हैड टू वेट फॉर दैट पर्सन टू स्लिप अप और लाइक यू नो सेंड देयर मेड
with 1 lakh rupees as compensation. तब आते थे लोग आपको गाली बकने के लिए. नहीं बट मैं अभी सीरियसली एक दिल्ली के स्लम गया था और ब्रो वो स्लम वसंत विहार के अंदर है. लाइक प्रिया मार्केट देखी है? Yeah. प्रिया मार्केट के बिल्कुल आगे जाके लेफ्ट में वहाँ पे 6,000 लोग रहते हैं. और मैं इनके साथ गया, मैंने कहा चलो बस रिकॉर्ड करते हैं यार लोग की प्रॉब्लम्स क्या है, देखते हैं एक बार जाके. और हम दोनों अंदर 2 घंटा. लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे हाँ आप हर 5 साल में आ जाते हो. भाई यही सोच भाई उन्होंने यही बोला हमें. कहते आप कौन से पार्टी से हो? एग्जैक्टली. मैंने कहा मैंने यही बोला, मैंने कहा हम किसी पार्टी से नहीं है. हम बस ये देखने आए कि आप लोग की दिक्कतें क्या है. हमने यही बोला. और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा बंदा मिल गया जिसकी वहाँ पे सबसे फेमस सिगरेट की दुकान है. अच्छा. वो हमें अंदर ले गया, उसने 2 घंटे में पूरा स्लम घुमाया. मेरे लिए बहुत मूविंग एक्सपीरियंस था भाई. वहाँ पे लिटरली लोग, जितना ये बड़ा सोफा है उतना लोगों का कमरा था. खाना भी उसके अंदर, नीचे वहीं सो रहे हैं, सब कुछ उसी के अंदर. और मैंने बस ये रियलाइज करा उस टाइम नहीं बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि भाई जो एलीट, लाइक यू जस्ट सेड, जो ये अपनी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं ना लाइफ की, खाना ठंडा आ गया, फॉर मतलब इतनी छोटी छोटी इशूज़ की यार मैं जो डियोडोना में एंट्री नहीं हुई. जब वो वहाँ जाओ, और मैंने उस वीडियो में मैंने यूट्यूब पे बना के डाली, मैंने सबको यही कहा कि एक बार ना ये एक्सपीरियंस कर लो भाई, आपके अंदर इंसानियत आ जाएगी. नहीं आई जेन्युइनली फील कि दिस इज नॉट समथिंग टू बी लाइक टेक, इसको ऐसे देखा और आप बोलोगे नहीं आई नीड टू बी ग्रेटफुल. तो फिर बिकॉज दीज पीपल वुड डू एनीथिंग टू नॉट बी इन दैट प्लेस. ऑफ कोर्स. एंड कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा करता है ना कि भाई हम पे ना बहुत चीज़ें हैं और इनके पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो बन जाता है पोर्नोग्राफी. हाँ, पावर्टी पोर्नोग्राफी बोलते हैं इसको. जैसे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है ऐसी पिक्चरों को, जैसे हो गई अपनी स्लम डॉग मिलियनेयर, है ना. स्पेशली लाइक वाइट पीपल, दे कम टू इंडिया स्ट्रेट अप, उनको लगता है वेयर इज द नियरेस्ट स्लम. समझ रहे हो ना. बिकॉज उनके लिए इंडिया एक स्पिरिचुअल कम होता है, हम्बलिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है. एंड आई फाइंड दैट रॉन्ग. कहीं ना कहीं आई फाइंड दैट रॉन्ग बिकॉज उस चीज़ में एक लेवल ऑफ ऐसी चीज़ होती है कि आप वो हो और हम ये. समझ गया. एंड वो चीज़ नहीं होती कि हम दोनों में डिफरेंस आप और हम का नहीं है, आप और वो का नहीं है. इट वॉज जस्ट लक. नहीं बट ये सच बात है. इट वॉज जस्ट लक. तो फिर मतलब नहीं बट आप ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सच है कि भाई किस्मत है, बहुत बड़ी चीज़ होती है किस्मत. हाँ. बट मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि वहां जाके भी करोगे आप और हम. मेरा ये मतलब है कि भाई अगर मैं वहां जाता हूँ, मेरे को उनकी दिक्कतें तो समझ आती है कम से कम, कि हम किस चीज को लेके कुड़ रहे हैं. मेरा ये मतलब है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफरेंशिएट करो कि भाई हम एक पेडेस्टल पे हो और आप यहाँ हो और हम आपको आके देख के ये सब चीजें अपने दिमाग में डाल रहे हैं. बट कम से कम लगता है कि भाई तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है. वो देख रहे हो जो भीख मांग रहा है, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ही बन जाओगे. नहीं मम्मी. हाँ, ये इसमें वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला. अगर पढ़ाई भी कर ले तो शायद से यही कर रहा होता. तो मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब लाइक कि यू कैन जस्टिफाई और लाइक द प्रॉब्लम इज टू डीप. यू कैन नॉट ट्रिवियलाइज इट बाय सेइंग कि नहीं भाई इससे मैंने आज ये चीज़ सीखा, इस चीज़ से ये मैं समझा. बिकॉज बट ब्रो आप ऑन ग्राउंड ही रह के चीजें समझ सकते हो और कर सकते हो. आई गेट इट. ऑन ग्राउंड रह के आप समझ सकते हो. तो अगर आपको ऑन लाइक आई एम ऑल्सो टॉकिंग फ्रॉम कहीं ना कहीं द पॉइंट ऑफ लाइक वेरी टूरिस्टी. Get it? Like this is a spiritual journey. I can get it from your point of view. Yeah. But from my point of view, to be honest, it's not that I've been doing such drives in the last 8-9 years. Yeah. I mean, it's but like I'm saying, no. Suppose karo a guy comes in, ठीक है, filthy rich. He sees these people, ठीक है, and you know what he learns? He learns the lesson of minimalism. But what he doesn't see is structural issues. Yeah. He doesn't see कि मतलब these are some people that have been marginalized. Yeah. वो नहीं देखता है. वो कहीं ना कहीं उस चीज को बढ़ावा और दे देता है. नहीं. हाँ, मार्जिनलिज्म है, स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, but they are still living. समझ गया. I get your point. They are still living. They are so happy. Can I not be happy? But that is so wrong. That is so wrong. I get your point. Yeah. That is so wrong. You cannot treat their
कि just because they are okay with their oppression, कि they are happy with their oppression. Because that's the exact attitude the Britishers had when they talked to Indians. कि this is a land of brutes and beasts. Still, they are so happy because they're ignorant. So, I refuse to believe that a person can, use somebody else's oppression as a learning point for themselves. क्योंकि उससे भाई तुम कुछ सीख के नहीं आया भाई. तूने ये बोल दिया कि जो तेरे साथ हो रहा है वो भगवान का सच है और मेरे को तेरे से ये सीखना है कि भगवान के सच में कैसे खुश रहना है. बल्कि वो भगवान का सच नहीं है, वो स्ट्रक्चरल सच है, वो स्ट्रक्चरल सच है. तो दैट शिट फॉर मी, मैं भी शुरू में ऐसे था ना, जब घर वाले बोलते तो बेटा पढ़ लो नहीं तो ऐसे बन जाओगे. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता पापा. समझ गया. नहीं ब्रो, मैं इस कॉन्वर्सेशन को रखूंगा पॉडकास्ट बिकॉज बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है. टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. टू आई रिस्पेक्ट योर्स, यू रिस्पेक्ट माय. I do because I come from जिंदल, ठीक है. एंड वहां पे ऐसी चीजें बहुत होती थी जिसके अंदर इन लोगों का यही होता है, प्रोजेक्ट करना है आपको, हम आपको ना एक स्लम में लेकर जाते हैं. अच्छा, आपको प्रोजेक्ट करना है, हम आपको एक ऑर्फनेज लेकर जाते हैं. और वहां पे जाके क्या आपको अपना प्रिविलेज याद आएगा? प्रिविलेज याद नहीं आता वहां पे जाके उन लोगों को. वहां पे जाके उनको ये याद आता है कि दे आर स्टिल सो हैप्पी. देखो इतना सब कुछ हो रहा है, दे आर स्टिल मैनेजिंग टू लिव लाइफ. नहीं होता भाई मेरे हिसाब से. when people engage in such conversation, in such experiences, there is a nuance involved, which is sometimes very much hidden. Because people, I wouldn't say because people are so ignorant that they have thought कि जितना उनके पास है that is natural, that is how the world is, how it is. But they don't see the nuance involved. And जब वो ऐसे लोगों के साथ में मिलते हैं उनको ऐसा लगता है कि खुश तो हैं. सही बात है. नो, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट व्हाट इफ देयर इज आल्सो नुआंस्ड इन्वॉल्वड इन दैट. अगर आप वहां जाके, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं. देखो, मैंने आपको कहा था मेरे को पॉलिटिक्स एंटर करनी है. मैं बिल्कुल ओपनली ये बात बता. अगर मैं वहां जाके, अगर वहां पे हर 5 साल में एक नेता जा रहा है, अगर मेरे को आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, और अगर मैं अभी मान रहा हूं कि मैं एक्चुअली मैं वहां के लिए कुछ करूंगा, इस पे लोग हंस सकते हैं क्योंकि भाई नेता एक बार वोट बन जाता तो वो गायब हो जाता. बट अगर मेरी ये अपनी थिंकिंग है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पहले वहां जाके समझूंगा उनकी दिक्कतें. हाँ, मतलब you shouldn't be divorced. मैं अगर वहां गया ही नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा कि भाई इनकी एग्जैक्ट दिक्कतें क्या है. मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू Sure. Then it makes sense. कि भाई मेरे को इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना है. मैं कम से कम जाके समझू तो कि अगर यहाँ पानी साफ नहीं हो रहा, अगर पानी किसी पर्टिकुलर घरों में नहीं आ रहा, इनकी दिक्कतें क्या है. भाई उन्होंने वहां पे मेरे को अपनी जेन्युइन दिक्कतें बताई कि हम ये चाहते हैं कि हमारी घर ऐसे बने. It takes a lot of privilege to also understand what is the problem with having 100%. है ना? Yes. So of course I do get it. It takes a spine to have to go out there. No bro, it does not even take a spine. It's just for me, I don't just see this as कि भाई ये लोग oppressed है, मैं जाके मेरे को तो पता है मैं कैसा हूँ. I hope शायद मैं दूसरों को ये चीज रियलाइज करा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक और मोटिव भी है वहां जाने का. Okay. ठीक है. I get it. You know? Yeah, I get it. But this was a very good conversation. Yeah, thank you, man. Yeah. It means a lot, man. Very intellect side of Mr. Arpit Bala as well. I hate that, And कोई बोलता है, oh, this side of Arpit Bala. तू कभी अनुव जैन जैसे गाने निकालेगा? मैंने एक वीडियो देखी थी. हाँ, but, a lot of people think that I hate Anuv Jain, but I don't. No, that's why I didn't ask you. Do I hate you? I am jealous of Anuv Jain. I am envious of that boy. And that was my question to you. That are you jealous of? Yeah, I am envious, jealous. I hate him for that because. For what? हाँ, no. कि लोगों को हुस्न सुनना होता है किसी कॉन्सर्ट पे. It's just how he is. He fits the perfect. The way he is built, the way he looks, the way his voice is, the way he plays the guitar. Yeah, perfect. Perfect for every girl's dream.
I wouldn't say good, but it's just a perfect, वो जो होता है ना, एक perfect boy. सेट हो रहा है. हाँ, एक perfect. What I'm waiting for is the receding hairline. ठीक है, आवाज मोटी होना, सिगरेट की आदत, ये 3 चीजें. ये 3 चीजों का मैं वेट कर रहा हूं. फिर मिलते हैं बॉस. मैं आज ही देख रहा था वो कोई क्या कहते कबड्डी खेल लो तेरे फोरहेड पे क्या है. It's unfair. It's unfair. एक टीम के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है. आई थिंक हमें काफ़ी टाइम हो गया भाई. 2 घंटे हो गए. कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए. इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एडिट्स भी होगी. तो वो हटा दें. भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you for coming, bro. It was a lovely conversation. I actually really enjoyed every subject matter that we discussed. Thank you so much. And I hope to see you again. Thank you so much for being on the podcast. Thank you.